kinds of people now. One is जिनको वेट कम करना है, सेकंड है जिनको वेट थोड़ा गेन करना है. सो आपकी तरफ से एक क्विक चैलेंज जैसा कुछ अगर आप उन्हें बोलना चाहें कि ये करोगे तो वेट कम हो सकता है. You can actually eat your favorite food and can still be fit at the same time. One is budget friendly, good nutritious food. Okay. Yeah, and second is when we are traveling, how do we make right choices? Budget friendly की अगर बात करें तो go back and eat what your grandparents used to eat. Okay. वो easy था, accessible था, सस्ता था, कुछ महंगा नहीं था. For example, exercise कर सको, at least 30 minutes की अगर आप exercise कर सको तो उसका आप direct impact देखोगे अपने energy levels पे और अपने focus पे. आपके हिसाब से हम गलत कर जाते हैं, right? In terms of healthy eating or unhealthy eating. बहुत सारी चीज़ें हैं ये हमें लगता है हम हेल्दी खाते हैं बट एक्चुअली पलट के देखें तो रियलिटी कुछ और होती है. जब हम डिसाइड कर लेते हैं ना कि अब मीठा नहीं खाएंगे, ना ही ज़्यादा शुगर क्रेविंग भी होने लगता है. व्हाट्स योर टेक ऑन क्रेविंग? शुगर्स क्रेविंग खास तौर पे लाइक मुझे लगता है क्रेविंग्स ना हमारे मोबाइल नोटिफिकेशन की तरह होती हैं. These days, a lot of people are talking about intermittent fasting. Is fasting really good? And if it is good, ये कैसी होनी चाहिए? फास्टिंग हर किसी के लिए नहीं है, मतलब it comes with a caveat कि ये हर किसी के लिए नहीं है. And can this be done on a daily basis? Intermittent fasting or no? नमस्कार, this is दीपक बजाज और स्वागत है आपका ट्रांसफॉर्मेशन टॉक्स विद दीपक बजाज के अगले एपिसोड में. आई एम वेरी वेरी हैप्पी, वेरी एक्साइटेड टुडे बिकॉज वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट ऑन आवर ट्रांसफॉर्मेशन टॉक शो टुडे. शी इज अ health and wellness coach. She's an entrepreneur. She runs her own health and transformation company. She has her own wellness company. She's a very powerful content creator and she already has a family of 2 million plus people on social media. So we are blessed today and it's my privilege, it's my honor to invite in front of all of you a very very special guest, Gunjan Taneja. Hearty welcome, Gunjan. Thank you so much, Deepak ji. Thank you for having me here and giving me this wonderful opportunity to speak with your audience and to interact with you. Thank you. All our pleasure. All are super excited. And we have so much. We have so many things to discuss with you. Okay. Right? Yeah. All right. Bring it on. Right. Right. But before we get into the questions that we want to ask you is the biggest thing about you, which we have researched and we found out, is your own transformation. Right. So before we discuss how you can transform and you can help us transform, तो आप सबसे पहले आपकी अपनी transformation journey हमें आप जरूर बताइए, like sure. How it all started. Also, you tell us like what triggered you to get into that and why and how of this, right? Your own journey. So this story, because it's my own story, it's very close to my heart. और ये मैं बताते वक्त हमेशा इमोशनल हो जाती हूँ. So किसने मुझे ट्रिगर किया पहले मैं वो बताती हूँ. So जैसा हम सब लोग बोलते हैं कि so what's the best phase of your life? What was the best phase of your life? Was it your childhood? अगर आप मुझसे पूछेंगी तो right now I feel I am living the best phase of my life. Best phase of your life. So mostly लोगों का होता है कि childhood बहुत उनके दिल के close होता है और उनको लगता है कि मैंने जो childhood में मस्ती करी है that was the best phase. However, in my case, my childhood was the worst phase of my life. Oh. And that's because of my health reasons. Okay. मेरी health उस टाइम पे बहुत ख़राब थी और उसका रीज़न ये अवेयरनेस नहीं थी, पता नहीं था, ओबिसिटी थी, मोटापा था और उस वजह से मेरा पूरा चाइल्डहुड स्पॉइल हो गया. मतलब होता है ना कि जब हम स्कूल में होते हैं, बच्चे होते हैं, जाते हैं, तो क्योंकि मैं एक सर्टन मेरी फिजिक अच्छी नहीं थी तो लोग मुझे बहुत टीज करते थे, लेग पुल करते थे. तो मेरे को वो एक चाइल्डहुड कभी भी नहीं मिला और जिसकी वजह से मेरा पूरा बचपन स्पॉइल हो गया. फिर बड़े होके जब मैंने इस चीज़ को रियलाइज़ करा और समझा कि ये मेरे अपने कंट्रोल में है, मैंने चार्ज लिया इस चीज़ का, तो मैंने न्यूट्रिशन हेल्थ के बारे में पढ़ना शुरू किया, समझा इसको और धीरे धीरे मैंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया. और ट्रांसफॉर्मेशन भी वो ऐसे था कि मैं बहुत कोशिश करती आ रही थी बचपन से, बट नथिंग वाज वर्किंग बिकॉज आई वाज मे बी नॉट डूइंग इट द राइट वे. तो जब मैंने रियलाइज़ करा कि अच्छा सही तरीका क्या है, मैंने उसके बारे में पढ़ा, रिसर्च किया, हेल्थ न्यूट्रिशन को थोड़ा थोड़ा समझा, जाना, तो मैंने विद इन अ स्पैन ऑफ 3 months अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया. मैंने अराउंड 20 किलो वेट लूज कर लिया 3 महीने के अंदर. यस. और वो भी एकदम हेल्दी डाइट और एकदम हेल्दी तरीके से, नो शॉर्टकट्स. और सीक्रेट नहीं है वो, आप बता देती हैं. कोई सीक्रेट नहीं है. इट्स ऑल देयर ऑन माय YouTube एवरीवेयर. मैं हर चीज हर किसी टुडे आल्सो यू कैन शेयर. एब्सोल्युटली, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे. तो 3 महीने में मैंने खुद को ट्रांसफॉर्म किया और फिर मैं 9 to 5 जॉब करती थी.
बट उसके बाद मैंने रियलाइज़ करा कि शायद मेरी लाइफ का जो मिशन है वो ये होना चाहिए, क्योंकि मैंने जो पूरा अपना चाइल्डहुड देखा है, आई डिड नॉट वांट कि बाकी लड़कियां या बाकी लोग भी उस चीज़ को सफ़र करें। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं ये अवेयरनेस औरों के साथ दूँ। तो यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम, सो सोशल मीडिया वाज द बेस्ट मीडियम, और फिर मैंने वीडियोस बनानी शुरू कर दी। ओके, एंड व्हेन वाज दैट? वीडियोस बनाना शुरू आपने ये कब मैंने किया? 4-5 साल पहले वीडियोस बनाना शुरू किया, बट तब मैं Okay. इसको एज अ हॉबी कर रही थी, शौक था मेरा लोगों के साथ Right. शेयर करना। बट धीरे धीरे जब मुझे ऑडियंस का रिस्पॉन्स मिला और जब मैंने देखा कि लोगों की लाइफ चेंज हो रही है मेरी इन सब बातों को करने से, और जब मुझे ईमेल्स आए, डीएम्स आए लड़कियों के कि हम इतना बुली होते थे, हम अपना Right. इतना सेल्फ डाउट था, बॉडी इमेज इश्यूज थे, और अब हम बहुत आपके ये सब चीज़ों को फॉलो करके हम हेल्दी हो गए हैं, फिट हो गए हैं। राइट। आई थिंक दैट डे आई रियलाइज दैट आई हैव अ बेटर पर्पस टू सॉल्व। बट एक चीज, एक मेरी क्यूरियोसिटी है हाँ कि जी। कई साल तक गुंजन के साथ एक पर्टिकुलर फिजिक, एक पर्टिकुलर तरीके से यू मस्ट हैव बीन लिविंग, एक पर्टिकुलर तरीके से आप खाते होगे, एक पर्टिकुलर तरह का वर्कआउट था और उसी तरह से आप चल रहे थे। हाँ जी। अचानक एक ऐसा क्या ट्रिगर था कि अब आपको लगा कि अब बदलना है? जैसे आई नो लॉट ऑफ पीपल पर्सनली जिन्हें ऐसा लगता है मैं तो ना बचपन से ही मोटा हूँ, मैं जैसे मैं उनसे पूछ लेता हूँ कई बार कि आप ध्यान क्यों नहीं रखते, फिर वो बोलते हैं जी मैं तो शुरू से ही ऐसा हूँ। तो आपकी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप स्कूल में और कॉलेज में यू वर स्ट्रगलिंग विद दिस। Right. फिर वो क्या हुआ कि मतलब 10 साल तक जो नहीं हुआ वो 3 महीने में हो गया, राइट? आपने बहुत सही पकड़ा है। ये हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा ट्रिगर होता ही है जो आपके अंदर वो अचानक से फायर लाइट कर देता है। तो मेरी अभी रिसेंटली शादी हुई थी और मेरे इन-लॉज में से किसी ने मुझे कुछ ऐसा बोल दिया था जो बात मुझे बहुत हर्ट कर गई थी। और फिर मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे कुछ करना होगा, आई शुड टेक द चार्ज। तो वो मैंने मतलब रिवोल्ट में नहीं, बट मुझे था आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ। यस। तो अब मैं अपना एक बार बेस्ट दे के देखूंगी और फिर जो होगा देखा जाएगा। तो एक रिश्तेदार की एक बात नहीं, मतलब मैंने उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाया एंड देन आई टुक राइट एक्शंस एंड आई एम नाउ सो थैंकफुल टू दैट रिश्तेदार। करेक्ट। यू नो इन माय जॉब ना देयर वाज समबडी, अगर वो पर्सन नहीं होता और वो मेरी पर्टिकुलर कंप्लेन नहीं करता तो मैं शायद जॉब रिजाइन का डिसीजन नहीं लेता, राइट? सो समटाइम्स सम पीपल उस वक्त हमें वो कई बार तकलीफ भी दे रहे होते हैं, बट आज मैं उनको मुड़ के देखता हूँ ना तो मेरी जॉब में, मुझे पिछले 4 साल मैंने जॉब किया है तो 4 सालों में मुझे सबसे फेवरेट मेरे को वही पर्सन लगता है। अगर वो उस समय वो नहीं करते तो शायद आई वुड हैव continued for few more years। और पता नहीं छूट पाती, नहीं हो पाती, एंटरप्रेन्योर में बनता है नहीं बनता। सो लाइफ में कुछ लेसन्स हमें हार्ड तरीके से मिलते हैं, बट एज यू सेड व्हेनेवर यू लुक बैक तो हमेशा ग्रेटफुली होते हैं उन इंसिडेंट्स के और उन लोगों के कि अच्छा हुआ तुम्हारी जिंदगी में आया और हमें थप्पड़ लगाया, उसी की वजह से आज हम यहाँ पर हैं। बट आई हैव सीन वन थिंग, ये होता है जैसे ट्रिगर हुआ, हर्ट हुआ, थोड़ा पिंच हुआ, लेकिन फिर हम वापस चले जाते हैं। जैसे 2, 4, 5, 6 दिन तो वो स्ट्रेंथ रहती है, उसके बाद देन वी फील चल कोई बात नहीं, और जैसे ही हम ये बोल देते हैं ना चल कोई बात नहीं, फिर हम वही दोबारा खाना शुरू करेंगे या दोबारा वही पुराने लाइफस्टाइल में आएंगे एंड अगेन वी गो बैक। सो आपके साथ ऐसा क्या हुआ कि आपने छोड़ा नहीं उसको, मतलब उसको लगा के रखा? लाइक आई एम वेरी श्योर जो आपके साथ हुआ वो कईयों के साथ हुआ, लाइक बुरा लगता है या तकलीफ होती है, बट देन वी फॉरगेट इट एंड मूव ऑन। लाइक व्हाट मेड यू स्टिक टू दैट कि अब करके ही रहना है? जैसे ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है दीपक जी। सो इस बार क्या डिफरेंट हुआ था वो ये था कि मैंने अपने आप को ना एक टाइम दिया था। मैंने सोचा था कि आई विल गिव माई सेल्फ 3 months और इन 3 महीनों में मैं हर वो चीज़ करूँगी जो सही है, जो मुझे करनी चाहिए, और अब जो भी सोचना ना इन 3 महीनों के बाद सोचेंगे, बिकॉज ये 3 महीने लाइफ में वापस नहीं आएंगे। तो इस बार मैं कोई सेकंड थॉट नहीं आने दूंगी, कोई डाउट नहीं आने दूंगी, नो लुकिंग बैक। और क्योंकि अगर मैंने ही ये आइडिया ड्रॉप कर दिया या अगर मैं ही रास्ते से भटक गई तो फिर नथिंग कैन हेल्प मी, फिर तो मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ ना अपने फेलियर के लिए। तो एक बार मैं अपने आप को फेलियर नहीं रखना चाहती। आई विल गिव माई बेस्ट फॉर दीज 3 months एंड देन लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो ऐसा नहीं है कि मैं बीच में कमजोर नहीं पड़ती थी या मुझे कुछ खाने की क्रेविंग्स नहीं हो रही हैं या मेरा जिम जाने का मन नहीं करा, वो सब कुछ हुआ, बट मैंने उन सब चीज़ों को होल्ड करके रखा। होल्ड ऐसे करके रखा, मतलब मैं एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ। मैं 3 महीने में से, जैसे मैंने बताया, मैंने एकदम डाइट, एक्सरसाइज सब कुछ ऑन पॉइंट चल रहा है। 1-1.5 महीना हो गया करते हुए, रिजल्ट्स भी दिखने शुरू हुए। 1-1.5 महीने बाद मेरे ऑफिस में किसी का बर्थडे था। अच्छा। और मेरा मतलब बहुत वीक पॉइंट है चॉकलेट केक। तो बर्थडे था और केक कटिंग हो रही थी, चॉकलेट केक आया, सब लोग बड़े एक्साइटेड थे और मैं सिर्फ चॉकलेट केक पे फोकस कर रही थी। आई वाज ट्राइंग टू कंट्रोल माई सेल्फ, और साथ में वो एक सेकंड थॉट चल रहा था कि
एक इतना सा पीस खाने से क्या ही हो जाएगा, एक बाइट लेने से क्या ही हो जाएगा. सो देयर वाज दिस कांस्टेंट फाइट हैपनिंग. फिर मैंने अपने आप को रिमाइंड करवाया कि आई हैव टू स्टिक ऑन व्हाट आई हैव डिसाइडेड फॉर माई सेल्फ एंड आई डोंट हैव टू ड्विंडल. ये मतलब मैंने याद दिलाया, बट सिर्फ याद दिलाने से काम नहीं बनता. तो मैंने उस टाइम पे एक जुगाड़ निकाला कि मैंने अपना फ़ोन निकाला, नोट्स खोले और उसमें मैंने अपनी एक लिस्ट बना ली, क्रेविंग्स लिस्ट. ओके. और उसमें मैंने लिख दिया कि जिस दिन मेरी ये डाइट ओवर होगी, 3 महीने पूरे होंगे, सबसे पहले मैं चॉकलेट केक खाऊंगी. दिस इज द थिंग. फैंटास्टिक. तो ओके. लिख दिया ना, अब आ गया. क्योंकि Right. चॉकलेट केक कहीं नहीं जा रहा. वो 2 महीने बाद भी वहीं रहेगा, वो ये बहुत बेकरी बढ़िया. वहीं रहेगी, आ जाएगा, ये टाइम वापस नहीं आएगा. राइट. तो वो ऑल्दो वो मेरी लिस्ट भरती गई, बट टू बी ऑनेस्ट 3 महीने के बाद मैंने उसमें से कुछ भी ऑर्डर नहीं किया, कुछ मन नहीं किया. बिल्कुल सही बात. तो आई थिंक ये छोटे छोटे सॉल्यूशंस, जुगाड़, नुस्खे आपको खुद ही निकालने पड़ते हैं, और वो तभी होता है जब आप पूरी तरह डिटर्मिन्ड होते हो. राइट. और मिलते हैं सॉल्यूशंस. और आपके सॉल्यूशंस आई थिंक आपको ही सबसे ज़्यादा पता है. ये कोई मूल मंत्रा नहीं है, कोई बुक में नहीं लिखा, किसी ने आके नहीं बताया. आई फाउंड इट फॉर माई सेल्फ. तो बट दिस इज फिनोमिनल. मेरे ख्याल से ना, जैसे जब हम 3, 4, 5 दिन कोई अच्छा काम शुरू करते हैं ना, 6th डे पे ना शायद आपकी लैंग्वेज, जो डाइट या हेल्थ कोचेस हैं उनकी लैंग्वेज में होता है ना, वो एक चीट डे जैसे कई बार बोल देते हैं. तो कई बार मुझे लगता है वो जो चीट डे पे जब हम ये करने लगते हैं ना, ये सोच के कि शायद इतने से क्या होगा. राइट. सो आपकी इन 3 महीने की जर्नी में आपने इस सवाल को इतने से क्या होगा ना, ये इसको आपने बड़ा कंट्रोल किया है, विच आई कुड फील. जब कुछ बड़ा करना लाइफ में, तो आई थिंक वो तपस्या बहुत जरूरी है. This word is also very important. You have to give it your best. Right. हम अगर खुद ही अपना 100% नहीं देंगे तो फिर हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं रिजल्ट्स. Very true. तो जिंदगी भर के लिए नहीं करना. Now I eat everything. ऐसा कुछ नहीं है, बट एक टाइम की तपस्या रिक्वायर्ड थी. Right. And you could maintain it. Yes, absolutely. जो वो 3 महीने की, वो कितनी पुरानी बात है, वो जो वो 3 महीने हुए थे. हाँ, उसको भी 4-4.5 साल हो गए हैं. And you are maintaining the same health, or even maybe getting better than. हाँ, in terms of strength, in terms of my mental health, mental well-being and physical strength as well, I'm getting better only. और आप एक बात बोल रहे थे कि during those years of school and college days and before your the transformation वाले 3 महीने, some mistakes you were doing, right? आप कुछ चीजें कर रही थी जो अल्टीमेटली काम नहीं कर रही थी. So like आम लोग भी, मुझे लगता है हम सब भी, like including me, everybody must be doing those mistakes. So what are some of the things जो हम जाने अनजाने, आपके हिसाब से 1 या 2 चीजें जो हम गलत कर जाते हैं, right? In terms of healthy eating or unhealthy eating. बहुत सारी चीजें हैं. ये भंडार है जो मिथ्स का और इन सब चीजों का. सबसे बड़ी आई थिंक मिस्टेक ये होती है कि हमें लगता है हम हेल्दी खाते हैं. बहुत सारे लोगों को ये मिसकंसेप्शन रहती है कि हाँ हम हेल्दी खाते हैं. क्योंकि हम तो ब्राउन ब्रेड ले रहे हैं, हम वाइट ब्रेड नहीं ले रहे. हम तो ये हेल्दी बिस्किट ले रहे हैं जिसके ऊपर हेल्दी लिखा हुआ है. और हम चॉकलेट नहीं खा रहे, हम एनर्जी बार ले रहे हैं. एनर्जी बार तो प्रोटीन बार लिखा हुआ है उसके ऊपर. बट एक्चुअली पलट के देखें तो रियलिटी कुछ और होती है. ब्राउन ब्रेड में रिफाइंड फ्लावर लिखा हुआ है, और मतलब उसका सिर्फ नाम है ब्राउन ब्रेड, बट इट्स नॉट एक्चुअली हेल्दी. तो हमें लगता है हम हेल्दी खा रहे हैं, बट वो एक्चुअली में हेल्दी है नहीं. अगर ऐसा होता तो इंडिया जो ओबेसिटी में रैंक 3 पे नहीं होता. हमें इंडिया को डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है. वो नहीं होता. हर 5 में से 1 वुमेन को PCOD की प्रॉब्लम है, वो नहीं होती. ये सारी लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं जो मैं बता रही हूँ. इसका मतलब हमारी डाइट कहीं ना कहीं ठीक नहीं है. सो हमें लगता है हम हेल्दी खाते हैं बहुत सारे लोगों को, बट वो एक्चुअली हेल्दी खा नहीं रहे होते. सो ये एक चीज़ है कि लर्न अबाउट योर फूड, बी मोर अवेयर. अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हो तो आप देखो कि आप सच में, कोई आपको पागल तो नहीं बना रहा थ्रू मार्केटिंग और थ्रू अदर गिमिक्स. तो ये एक चीज़ है. उसके अलावा हम लोग खाने को लेबल कर देते हैं कि ये गलत खाना है. फॉर एग्जांपल कार्ब्स खराब होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है. कार्ब्स बहुत ज़रूरी मैक्रो न्यूट्रिएंट है. फैट बुरा होता है, ऐसा नहीं है. ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं. फाइंडिंग द राइट थिंग, किस तरह का कार्ब, वो प्रोसेस्ड कार्ब ना हो, वो होल ग्रेन हो, तो वो हेल्दी है, ज़रूरी है, इसेंशियल है. हेल्दी फैट्स लो. तो चीज़ों की नॉलेज होना, तभी मुझे लगता है कि शायद जिस तरह से आजकल हम फाइनेंशियल लिटरेसी की बात करते हैं, हम इतनी सारी चीज़ों की बात करते हैं, हम हेल्थ लिटरेसी को बहुत ज़्यादा, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको कोई इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही. राइट. सो हेल्थ एजुकेशन, लिटरेसी, अवेयरनेस, नॉलेज ये होगी तो, अगर जस्ट इमेजिन कि अगर स्कूल लेवल से ही ये सब चीज़ें लोगों को बताई जाए, बच्चों को पता हो कि क्या मेरा लंच बॉक्स एक बैलेंस्ड मील है, तो ये प्रॉब्लम्स कभी अराइज ही ना करें. सो ये सारी चैलेंजेस मुझे आए क्योंकि मुझे वो अवेयरनेस नहीं थी. और जब मैं आज देखती हूँ कि आजकल के बच्चों को, लोगों को वो अवेयरनेस ही नहीं है, वो हेल्थ कॉन्शियस होते हुए भी सही डिसीजंस नहीं ले पा रहे अपने लिए. तो
I think that's something that needs to be changed. Like you just mentioned about good fat, or all fats are not bad. Yeah, Yes. some carbs are good, some are not bad. Right. So, like इसी बात से आगे बढ़ते हुए, like how do we check which is good, which is bad in terms of carbs or in terms of fats? सो नॉलेज मतलब अगर आपको अवेयरनेस है तो पता होगा. जैसे अगर मैं फैट्स की बात करूँ तो सैचुरेटेड फैट या ट्रांस फैट, यानी कि जैसे ट्रांस फैट हो गया जिसमें जो फ्राइड फूड है वो ट्रांस फैट बन जाता है. Okay. और उसी तरह बेकरी आइटम्स में ट्रांस फैट है, बटर हो गया, रेड मीट हो गया, चीज़ हो गया, ये सब प्रोसेस्ड फैट है. ये सब हमारे लिए अच्छा नहीं है. इसको लिमिट में खाना चाहिए. और Okay. दूसरा हेल्दी फैट्स हो गए जो नट्स और सीड से मिलता है, जैसे सनफ्लावर ऑयल, पीनट ऑयल, जो प्रोसेस्ड नहीं है, या फिर जो कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स होते हैं, ये सारे Okay. हेल्दी फैट्स हैं. तो इसकी थोड़ी सी नॉलेज, मतलब हम थोड़ा सा भी इसके बारे में पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, ऐसे लोगों को फॉलो कर लेंगे, थोड़ी अवेयरनेस होगी तो वी विल बी एबल टू मेक राइट डिसीजंस फॉर आवरसेल्फ. Right. जिस भी चीज़ के ऊपर प्रोसेस्ड लिखा है दैट मीन्स उसको केमिकल्स के थ्रू प्रोसेसिंग की गई है, उसके ऊपर वो सही नहीं Right. है, तो उसको छोड़ दिया जाए. So process is जितना ज्यादा प्रोसेस्ड उतना ज्यादा खराब, राइट ना? चाहे वो फैट्स की बात हो, चाहे सिमिलरली वो कार्ब्स की बात कार्ब्स हो. में भी प्रोसेस्ड कार्ब, ये जो मैदा और ये सारी चीज़ें, बेकरी, ये सब चीज़ें खराब हो गई. होल व्हीट, होल ग्रेन अगर हम ले रहे हैं वो उतना हेल्दी है. और एक ना डाइट में जब हम खाने की बात करते हैं तो एक बड़ा विलन माना जाता है शुगर. और शुगर हर जगह है, एवरीवेयर इट इज देयर. और जितनी शुगर उतना मज़ा भी आता है खाने में. एंड वी ऑल गेट दैट. जब हम डिसाइड कर लेते हैं ना कि अब मीठा नहीं खाएंगे, आई डोंट नो व्हाट इज, यू नो बेटर, लाइक व्हाट हैपेंस इनसाइड आवर बॉडी, आई डोंट नो, बट उतना ही ज़्यादा शुगर क्रेविंग भी होने लगता है. Right. और अगर किसी दिन ना खाओ तो शाम तक, लाइक पर्सनली मेरे साथ ये हुआ है कि सुबह से मैं कंट्रोल करके रखा हुआ हूँ, और लेकिन रात को जाते जाते ना फिर वो 9, साढ़े 9, 10 बजे के आसपास it cravings become so much that I eat something and जो पूरे दिन की मेहनत है वो बेकार हो जाती है. So what's your take on क्रेविंग्स? sugars craving खास तौर पे, like how do we handle it? क्रेविंग्स इन जनरल अगर मैं बात करूँ तो मुझे लगता है क्रेविंग्स ना हमारे मोबाइल नोटिफिकेशन की तरह होती हैं. Okay. अगर हम अपने फ़ोन की सारी नोटिफिकेशंस ऑन रखेंगे तो वो बारी बारी आती रहेगी और हम डिस्ट्रैक्ट होते रहेंगे. हमारा मन करेगा कि Okay. ये मैसेज आया, किसी ने कमेंट करा है, रिप्लाई करा है, लेट्स ओपन इट. तो उसको बंद करना होगा. तो क्रेविंग्स के लिए दिस इज़ व्हाट आई पर्सनली डू. मैं रखती नहीं हूँ घर में वो सब चीज़ें. वो आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड ना होगा तो ना उसको खाने का मन करेगा. जब हमारे पास ऑप्शंस होती हैं, पता होता है ना फ्रिज में चॉकलेट पड़ी है तो उसको खाने का मन भी करता है. Okay. पड़ी नहीं होगी तो हमारे माइंड को पता है कि ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास. तो पहली चीज तो यही कि उन नोटिफिकेशंस को बंद कर दिया जाए. Perfect. This example is very good. So craving is like mobile phone notification. Notification. Up to you, आप उसको ऑन रखते हो या ऑफ रखते हो. अगर आपके चारों तरफ ट्रिगर्स हैं राइट. तो फिर आप चाहकर भी जैसे फोन उठा लेते हो वैसे ही शुगर खा लोगे. अब मेरे right? पास यहाँ पर कुछ पड़ा होगा, चिप्स पड़े होंगे तो मैं चिप्स खाऊंगी. मेरे यहाँ पे नट्स पड़े होंगे तो मैं नट्स खाऊंगी. राइट. इट्स प्रीटी ऑब्वियस. Right. तो नट्स रखो ना, चिप्स मत रखो. राइट. मेरा एफर्ट बढ़ेगा चिप्स को ऑर्डर करने में, वहां पे मैं Right. आलस करूंगी एंड आई विल नॉट हैव इट. राइट. मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई विल नॉट हैव इट. अब बात करते हैं कि जब मेरे को सच में मन कर रहा है, लाइक हाँ. अंदर से आई नो आई एम रियली क्रेविंग फॉर इट, चाहे नहीं भी है मैं फटाफट से मोबाइल खोल रही हूँ, ऑर्डर कर रही हूँ. वंस इन अ वाइल अगर ऐसा है तो दैट्स फाइन. वी आर ह्यूमंस, हमें अपने आप को टॉर्चर करने की जरूरत नहीं है. मीठा खाने का इच्छा हो रही है, वन लाइफ, गो एंड हैव इट. राइट. बट अगर ये इच्छा बार बार हो रही है, इसका मतलब मे बी कुछ कमी है हमारी बॉडी के अंदर, या हमारी बॉडी कुछ साइन दे रही है हमें कि जैसे अगर शुगर की क्रेविंग होती है तो हो सकता है हमारा ब्लड शुगर लेवल्स डाउन हो और इसलिए हमें वो खाने की क्रेविंग होती है. ओके. अगर हमें सॉल्टी चीज़ खाने का मन कर रहा है, दैट इसका मतलब ये हो सकता है कि हम हाइड्रेटेड नहीं है वेल. चॉकलेट खाने की क्रेविंग ज़्यादा होती है बार बार तो हो सकता है कि मैग्नीशियम लेवल्स लो हों. Okay. अगर चीज़ फैटी फूड खाने की क्रेविंग होती है तो इसका मतलब हो सकता है कि ओमेगा 3 का लेवल्स डाउन हो. ओह. तो ये कुछ बॉडी के सिग्नल्स हो सकते हैं, साइंस हो सकते हैं कि बार बार अगर हमारा कुछ मन कर रहा है, जैसे अगर हम टी एंड कॉफ़ी की हमें बार बार नीड हो रही है तो ये कोई क्रेविंग नहीं है. इसका मतलब है कि फिजिकल डिपेंडेंसी है चाय और कॉफ़ी पे. उसको हम रूट कॉज को समझें और उसको फिक्स करें. हो सकता है कि मैग्नीशियम और इन सब लेवल्स को ठीक करने से हमारी क्रेविंग्स भी ठीक हो जाएं. ओके. सो क्या हमें अगर कुछ बार बार हो रहा है, like cravings are coming repeatedly, so should we go through some tests and all and figure out what is wrong? एग्जैक्टली. फुल बॉडी टेस्ट हम करवाएं, उससे हमें पता चलेगा. और मोस्ट ऑफ द टाइम जंक खाने की क्रेविंग स्ट्रेस की वजह से भी होती है. जब हम अंडर स्ट्रेस होते हैं तो हमें कुछ ऐसा चाहिए होता है जिसको खा के हमारे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज हो, हमें थोड़ा बेटर फील हो. तो मे बी वी आर अंडर स्ट्रेस,
तो हमें उसको स्ट्रेस को मैनेज करना है थ्रू राइट थिंग्स, मेडिटेशन, गुड स्लीप, एंड विल नॉट हैव द क्रेविंग्स। क्रेविंग इज ओनली, ऐसा लग रहा है मुझे आपकी बात सुन के कि क्रेविंग इज ओनली एक सिम्टम है जो हमें दिखाई पड़ रहा है, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे इमोशनल और फिजिकल, राइट, बॉडी की तरफ, हाँ, मेडिकल इमोशनल रीजंस हो सकते हैं। सो अगर वो बार बार हो रहा है तो ओके, वी डिस्कस अबाउट फैट्स, क्रेविंग्स, शुगर्स। दो चीजें अब आप मुझे खास बताइए, अगर हम इन सारी चीजों को मिलाकर एक बजट फ्रेंडली अच्छा कुछ न्यूट्रिशन किसी को देना चाहें, राइट, वो आपके पास कंसल्टिंग के लिए आए, वो अलग। आज अभी जो ऑडियंस आपकी ये बात सुन रही है, तो दो कारण है, दो बहाने हैं मुझे लोग बता देते हैं। एक, सर अच्छा खाना होता है ना वो बड़ा महंगा होता है जी, राइट, और दूसरा बोल देते हैं लोग कि हम ट्रैवल पे होते हैं। तो हमारी जो ऑडियंस है ये दोनों चीजों में उलझी है, तो आप हमें इन दोनों के सोल्यूशन दे दो। वन इज बजट फ्रेंडली गुड न्यूट्रिशियस फूड, एंड सेकेंड इज when we are traveling, how do we make right choices? बजट फ्रेंडली की अगर बात करें तो go back and eat what your grandparents used to eat. Okay. वो easy था, accessible था, सस्ता था, कुछ महंगा नहीं था। For example, वो millets खाते थे, ज्वार, बाजरा, रागी, ये सब चीज़ें बहुत easily मिल जाती हैं, effective होती हैं। दूसरा, eat local, seasonal, जो भी आपके लोकल एरिया में मिलता है और जो सीजन का सामान होता है, सीजन के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं, वो हमेशा आपको चीप एंड कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं। वो कभी भी महंगे वो होते हैं जो आपके एरिया में ग्रो ही नहीं करते। अब आप रहते हो इंडिया में, यूपी में, और आप खाना चाहते हो आवाकाडो, तो वो महंगा मिलेगा। राइट। आप वो खाओ ना जो आपके वहाँ पे ग्रो कर रहे हैं, वो आपके लिए सबसे ज्यादा हेल्दी भी है और वो आपको सस्ता भी मिलेगा। परफेक्ट। आप जब सड़क पे निकलते हो, मार्केट में जाते हो, सब्जी मंडी में जाते हो, तो जो भर के सब्जियां पड़ी है ना, वो आपके लिए हेल्दी भी हैं और वो सस्ती भी है। जो सब्जी सबसे ज्यादा दिख रही हो, सिंपल, और जो फ्रूट उस समय उस सीजन में सबसे ज्यादा दिख रहे हो, वो कभी महंगा नहीं मिलेगा। वो महंगा भी नहीं होंगे और वो आपके लिए अच्छे भी होंगे। फिर चाहे कोई भी सब्जी हो, कोई भी फ्रूट हो, या कोई भी दालें हो, कुछ भी इस तरह का चीज हो जो आपके वहां पर बन रहा है, इट विल नेवर बी फैंटास्टिक महंगा। एंड ट्रैवल पे एनीथिंग, एनी टेक यू हैव, लाइक ट्रैवल के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये एक ऐसी सिचुएशन है कि हम जितना मर्जी हेल्दी मेंटेन कर रहे हो, बट अचानक से ट्रैवल आया तो हम we lose it, right? इसके लिए छोटा सा एफर्ट है प्री प्लान करना एज इन कि आपको पता है कि अगले हफ्ते आपने ट्रैवल करना है, आपने कहाँ ट्रैवल करना है। आप थोड़ा सा प्री प्लान अगर कर लोगे तो आप उसको मेंटेन कर पाओगे, अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन कर पाओगे। फॉर एग्जांपल, आपको पता है कि आपने इस एयरलाइन में आपने कहीं जाना है, फ्लाई करना है, आपको पता है कि वहाँ पे मुझे जिस तरह का खाना मिलेगा वो ठीक नहीं है, तो मैं अपने घर से अपना कुछ पैक करके ले जाऊँ, राइट? तो कुछ इस तरह की चीज़ें मैं साथ में कैरी कर लूँ जो मेरे को हेल्प करेंगी। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे बैग में हमेशा एक नट मिक्स रहता है, या कुछ इस तरह की चीज़ें रहती हैं। मुझे पता है होटल में जाके ये सब होगा, ये अवेलेबल होगा, वो अवेलेबल नहीं होगा, तो मैं किस तरह से उसको मैनेज करूँगी। थोड़ी सी प्री प्लानिंग कैन हेल्प। दूसरा, ट्रैवल में हमारे पानी का इंटेक बहुत कम हो जाता है। हम जनरली जब अपने घर में ऑफिस में बैठे, हमारी आदत होती है पीने की, मगर बाहर जाके पूरा दिन निकल जाता है। तो ऐसे में हम अपने साथ अपनी एक वाटर बॉटल हमेशा अगर कैरी कर सकते हैं तो वो बेस्ट है, ताकि हमारी आदत रहे हाइड्रेशन को मेंटेन करने की। फैंटास्टिक। तो बस ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। आई वुड से प्री प्लानिंग, थोड़ा सा अवेयर होना कि ट्रैवल आ रहा है तो मुझे अपनी हेल्थ का कैसे ध्यान रखना है, कैन हेल्प। राइट। और पानी और खाना, या कुछ एक ऐसी चीज़ जो आपके पास हो, अपने नट्स हमेशा अपने पास रखो। ये बात ठीक है, चलो आपकी, क्योंकि वो पानी और नट्स, ये दो चीजें साथ लेके चलो, ताकि अचानक से अगर भूख लग रही है तो कुछ बाहर का अनहेल्दी ना लेना पड़े। राइट। अगर आप खाना चाहते हो, कॉन्शियस डिसीजन है तो लो, मगर जबरदस्ती का ना हो। ऐसा ना हो कि मजबूरी है, ऑप्शन नहीं है, उसके लिए आपके पास हमेशा अपना स्टॉक होना चाहिए। ये बातें हमने कर ली खाने की। अब एक चीज होती है ना खाना, which is fasting. Okay. So these days, a lot of people are talking about intermittent fasting. I don't know, it's a fad. मतलब ये ट्रेंडिंग चीज है जो आएगी और चली जाएगी। और is fasting really good? And if it is good, ये कैसी होनी चाहिए? मुझे लगता है fasting is the best way to detox your body. हम अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए बहुत कुछ करते हैं। इनफैक्ट बहुत सारी चीज़ें हम खाते हैं, बट अगर हमें रियल में अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना है तो हमें फास्टिंग से अच्छा कुछ नहीं हो सकता। और वो इसलिए क्योंकि यूजुअली जनरली हम लोग अपनी नीड्स और रिक्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा खाते हैं। अब हमारा लाइफस्टाइल सेडेंटरी होता जा रहा है और हमारे फूड इनटेक बढ़ता जा रहा है, तो दैट मीन्स हम अपनी बॉडी को ब्रेक ही नहीं दे रहे, अपने सिस्टम को ब्रेक ही नहीं दे रहे। हम कॉन्स्टेंटली
ब्रेकफास्ट होता है, लंच का सोचना शुरू कर देते हैं, बीच में भी कुछ खा लेते हैं, right. लंच के बाद हमारा इवनिंग एंड देन, बट हम पूरा दिन एक ही जगह पे बैठे हैं, हमारी फिजिकल मूवमेंट कुछ ज़्यादा है नहीं, तो वो एक्सेस लोड डालता है हमारी बॉडी के ऊपर, और जिसकी वजह से मतलब बॉडी को या सिस्टम को, मेटाबॉलिज्म को, डाइजेस्टिव सिस्टम को कभी भी ब्रेक नहीं मिलता। तो फास्टिंग इज़ द बेस्ट वे टू गिव योर सिस्टम अ ब्रेक, और सिर्फ फास्टिंग करने से हम बहुत सारी बीमारियों को एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि उससे टॉक्सिन्स फ्लश आउट होते हैं, सब चीज़ें होती हैं। फास्टिंग जो हमारा एक सेल डीजेनरेशन प्रोसेस होता है ना, कि पुराने जो सेल्स हैं हमारे वो बॉडी से निकलने चाहिए, रिप्लेनिशमेंट, उन सब चीज़ों में फास्टिंग बहुत हेल्प करता है, जो हमारी स्किन के लिए भी अच्छा है, हमारे इम्यूनिटी के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए, हेयर के लिए, मतलब हर तरह से फास्टिंग सपोर्ट करती है, हेल्प करती है, पहली बात। अब अगर मैं बात करूँ इंटरमिटेंट फास्टिंग की, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग इज़ द बेस्ट मॉडर्न वे टू गिव योर सिस्टम अ ब्रेक, क्योंकि मे बी हमारी करंट लाइफस्टाइल ऐसे है कि हम एक पूरा दिन भूखे रहें और कुछ ना खाएं, शायद हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, बिकॉज हमारा वर्क ऐसा डिमांड करता है, सारी चीज़ें हैं, हम नहीं अफोर्ड करते कि हम थोड़ी देर आलस में बैठे हैं या लो एनर्जी होके बैठे हैं और हमारा काम नहीं हो रहा, वो ना आप अफोर्ड करते हो ना मैं, तो हमें कॉन्स्टेंटली कुछ चाहिए, हमें सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए, ताकि इतना डिमांडिंग लाइफस्टाइल है हमारा, हमें काम करना है, ऐसा नहीं है कि हम घर पे बैठे हैं और कुछ नहीं करना। तो उसके लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग हेल्प करती है, बिकॉज उसमें आप पीरियोडिकली खाते हो और पीरियोडिकली फास्ट पे रहते हो, 16 घंटे का फास्ट करते हो, जो कि काफ़ी डुएबल है। अगर आप रात को अपना लास्ट मील 8 बजे भी लेते हो और अगले दिन आप फिर 12 बजे तक सर्वाइव करते हो, जिसमें मोस्ट ऑफ द टाइम आप सो रहे हो, तो आपकी 16 घंटे की फास्टिंग हो जाती है, विच इज़ डुएबल। फिर 12 बजे के बाद आप नेक्स्ट 8 आवर्स के लिए यू कैन ईट योर फूड, तो इससे हमें हेल्प मिलती है, अपना ऑटोमेटिकली हमारी कैलोरीज कट डाउन हो जाती हैं, तो फैट लॉस जिनको करना है उनको हेल्प मिल जाती है, और एक लंबे देर के लिए हमारे सिस्टम को ब्रेक मिलती है, जिससे हमारी बॉडी, जैसे मैंने बोला, डिटॉक्स हो जाती है अपने आप। सो दैट्स हाउ इंटरमिटेंट फास्टिंग। सो हमने 16 घंटे कुछ नहीं खाया, उसके बाद देन वी कैन हैव 2 or 3 मील्स या रेगुलर मील्स लाइक दैट। उसके बाद 12 से 8 आप अपना जो खाना चाहते हो, ऑफ कोर्स ऐसा नहीं कि अब हम उसमें आतंक मचा दें ये वर्ड और सीधा छोले भटूरे से हम स्टार्ट करें, दैट विल नॉट बी अ गुड आइडिया। माइंडफुल ईटिंग करें, बट उसके बाद हमें रिस्ट्रिक्ट करने की जरूरत नहीं है। 12 बजे क्योंकि हमारा एक लंबा फास्ट चला है बॉडी का, तो सीधा हम उसको एक हैवी मील के साथ नहीं, मे बी एक फ्रूट के साथ, एप्पल के साथ, या एक ग्रीन टी के साथ, जूस के साथ हम उसको ब्रेक करें। फिर 2 बजे एक मील लिया, 4-5 बजे चाय ली, 8 बजे एक और मील लिया, तो तब भी आपने पूरे दिन में 2 ही मील लिए, अदरवाइज आप पूरे दिन में कितना खा रहे हो, वो बहुत डिफरेंस आ जाता है। एंड कैन दिस बी डन ऑन अ डेली बेसिस, इंटरमिटेंट फास्टिंग, और नो? कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको फॉलो करने। अगर ये मेरी लाइफ का सिस्टम भी बना ले हम, कि हमने दिन में ऐसे ही खाना है, ये इट विल नॉट हार्म, ओके, फायदा ही करेगा। इनफैक्ट बहुत लोग करते हैं ऐसा, मतलब मैं बहुत सारे स्पिरिचुअल गुरुज से मिली हूँ, राइट, वो लोग दिन में एक मील लेते हैं, एंड लुक एट देयर बॉडीज, लुक एट देयर माइंड, और लुक एट देयर एनर्जी लेवल्स। हम अगर कम खाएंगे, हमारी बॉडी ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेगी, मे बी नॉट इनिशियली, शुरू में हमें थोड़ा चैलेंज आएगा अडेप्ट करने में, बट ग्रेजुअली आवर बॉडी विल लर्न टू अडेप्ट विद दिस एंड विल फील मोर एनर्जेटिक। हमारा माइंड बेटर वर्क करेगा अगर हम कम खाएंगे तो, बिकॉज अगर हम ज्यादा खा रहे हैं, हमारी बॉडी की आधी एनर्जी तो उसको डाइजेस्ट करने में ही जा रही है, तो वो सारी एनर्जी हम स्टोर करेंगे और उसको दूसरी चीजों में यूटिलाइज कर पाएंगे। राइट। किसी ने अगर फास्टिंग कभी किया ही नहीं, ओके, और वो शुरू करने वाले हैं अभी, सो व्हाट डू यू रिकमेंड? जैसे फिर भूख तो लगेगी, राइट, नहीं ये इच्छा होगी, तो क्या करें फिर उस समय? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सो फास्टिंग हर किसी के लिए नहीं है, मतलब इट कम्स विद अ केवियट कि हर किसी के लिए नहीं है। ओके, फॉर एग्जांपल जिनको डायबिटीज, ब्लड शुगर की प्रॉब्लम होती है, उनको मिनी मील्स लेना ज़रूरी होता है हर थोड़ी देर के बाद, ताकि उनके ब्लड शुगर लेवल्स मॉनिटर्ड रहें, मैनेज्ड रहें। तो उनके लिए बहुत देर तक फास्टिंग करना इज़ नॉट गुड फॉर देयर हेल्थ। प्रेग्नेंट वुमेन को फॉर एग्जांपल, या ब्रेस्ट फीडिंग मॉम्स हैं, उन्हें भी कॉन्स्टेंटली खाना, उनको न्यूट्रिशन रेगुलरली चाहिए, क्योंकि उनको अपने बेबी को फीड करना है, राइट। तो सबके लिए नहीं है, या फिर कई लोगों का बॉडी ऐसा होता है कि वो फास्टिंग डज नॉट वर्क फॉर देम, उन्हें कांस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए, या फिर जिनका बहुत ज़्यादा ऐसा काम है, फील्ड वर्क है, फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, तो उनको भी कांस्टेंट एनर्जी चाहिए। तो हर किसी के लिए नहीं है, बट अगर कोई शुरू करना चाहता है तो बिगिनिंग में आई वुड से कि इंटरमिटेंट फास्टिंग एक ऐसी चीज़ है जो लोग शुरुआत कर सकते हैं, जिससे 16:8 वाला अगर पैटर्न नहीं भी है तो और इसको हम ईजियर कर सकते हैं। हम 10 आवर्स ऑफ फास्टिंग से स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें आप 7-8 घंटे तो सो रहे हो और उसको 2-3 घंटे स्ट्रेच करके हम उसको धीरे धीरे
एंड साथ साथ हम जज करें कि क्या ये हमारे ऊपर वर्क कर रही है, क्या हमारी बॉडी में डिफरेंस आ रहा है. योर बॉडी विल टेल. लिक्विड्स आर ओके ड्यूरिंग फास्ट या ग्रीन टी? नॉन कैलोरिक लिक्विड्स आर ओके, मतलब जिनके अंदर ना के बराबर कैलोरीज है, जैसे कि पानी हो गया, ग्रीन टी, ब्लैक टी हो गया, ब्लैक कॉफी. हाँ, ब्लैक कॉफी हो गया. ऑल्दो खाली पेट ब्लैक कॉफी नहीं लेनी चाहिए, बट अगर आपने फास्ट अभी स्टार्ट किया और आप लेना चाहते हो तो जिनमें ना के बराबर कैलोरीज हैं वो ले सकते हैं. अब ऐसे बहुत सारे हेल्दी ड्रिंक्स होते हैं जो कहने को हेल्दी हैं बट उनमें कैलोरीज होती हैं. फॉर एग्जांपल कोकोनट वाटर, फॉर एग्जांपल बटर मिल्क यानी कि छाछ. ये सब हेल्दी बेवरेजेस हैं, बट क्योंकि इनके अंदर कैलोरीज हैं, बेसिकली हमें फास्टिंग करनी है, एज इन हमें अपनी बॉडी को कैलोरीज नहीं देनी. राइट. नहीं, आपने एक ना, ये अभी हम हेल्थ ड्रिंक्स की बात कर रहे थे, एक तो हेल्दी ड्रिंक्स, हाँ, एक है हेल्दी ड्रिंक्स विच इज छाछ है या कोकोनट वाटर है. देयर आर सो कॉल्ड हेल्थ प्रोडक्ट्स अवेलेबल एवरीवेयर आल्सो. कोई बोल देता है जीरो शुगर है इसमें, कोई बोल देता है इसमें जीरो कार्ब्स हैं, और लाइक लेबल की मैं बात कर रहा हूँ जो उसके लेबल पे लिखा रहता है, और इसमें मेड विद रियल फ्रूट्स करके वो जूसेस के पैक जूसेस के बॉटल्स हैं. सो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? बिकॉज वेरी टफ टू अवॉइड ऑल दिस, बिकॉज हमारे चारों तरफ ही यही है. और पहले शायद हमें कुछ और पसंद आता था तो शायद वो कुछ और लिख देते थे, लेकिन अब वो सेम आइटम रेगुलर शेल्फ से हेल्दी शेल्फ में मूव कर दी गई है, और ये बोल के कि हेल्थ फूड्स हैं. सो व्हाट इज योर एज एन इन्फ्लुएंसर इन दिस एरिया, एक्सपर्ट इन दिस एरिया, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? ये सब बहुत गिमिकी चीज़ें हैं. इट्स नथिंग बट गिमिक. ओके. बिकॉज मार्केटर्स को, एडवर्टाइजर्स को पता है कि लोगों को क्या चाहिए, तो वो अपने प्रोडक्ट्स को उस लुक एंड फील में मार्केट में उतार रहे हैं, सो दैट लोग गिल्ट फ्री होकर उनके प्रोडक्ट्स को चूज करें. हम जब भी कोई अपने लिए चॉइस करते हैं ना, वी वांट टू हैव दिस फैक्टर ऑफ प्राइड कि मैं कुछ गलत नहीं कर रहा, मैं सही खा रही हूँ. तो जब हम उसके ऊपर हेल्थी लिखा हुआ देखते हैं, मेड विद रियल फ्रूट्स देखते हैं, जीरो कार्ब देखते हैं, तो हम उसको बहुत प्राइड के साथ खरीदते हैं. राइट. और हमें लगता है कि हम अपनी लाइफ में कुछ गलत नहीं कर रहे, हम अच्छा कर रहे हैं, तो हमें एक सेटिस्फैक्शन मिलती है उससे. तो वो सेटिस्फैक्शन बेच रहे हैं मार्केटर्स, जिसको हमें समझना बहुत जरूरी है, गिमिक्स को समझना बहुत जरूरी है. वी ऑल आर दीज डेज, एटलीस्ट नाउ वी आर अवेयर कि पैकेट को पलट के देखना, इंग्रेडिएंट लिस्ट को पढ़ना, और इस चीज़ को समझना कि आगे चाहे जीरो शुगर लिखा है, मगर पीछे उसमें एस्पार्टेम जैसे प्रिजर्वेटिव्स और चीज़ों का, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का यूज़ किया गया है, तो वो और भी ज़्यादा डेडली है. ओके. तो आई थिंक इन सब चीज़ों की अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, और अब लोग समझ रहे हैं. द गुड पार्ट इज़ कि अब लोगों को ये चीज़ धीरे धीरे समझ में आ रही है. मेड विद रियल फ्रूट्स तो लिखा है, मगर वो 2% रियल फ्रूट है. बाकी सब चीज़ें क्या है, 98% क्या है, उसके ऊपर सवाल किया जाए. और एक ऐसी कैटेगरी है जहाँ पे लोग डाइट के लिए बड़े कॉन्शियस होते हैं, वो हमारे जिम गोवर्स होते हैं. Yes. राइट. एंड दिस पीपल आर रियली कीन ऑन बिल्डिंग देयर बॉडीज, और बहुत मेहनत करते हैं. कई बार ना आप उनको पसीना बहाते हुए देखो तो आपको तरस भी आएगा कि यार मतलब इसने जोर लगा रखा है. बट इन टर्म्स ऑफ फूड देयर आर टू थिंग्स इफ यू कैन क्लैरिफाई. नंबर वन इज if somebody is vegetarian. Okay. So what all things they can have in terms of protein? What all things they can have in terms of protein for a vegetarian? For a vegetarian. Okay. सबसे पहले तो मतलब एक ये बहुत बड़ा मिथ होता है कि जो वेजिटेरियंस हैं उनको इनफ प्रोटीन मिलता नहीं है, हाँ. या फिर वो अपनी बॉडी बिल्डिंग नहीं कर सकते, या फिटनेस पर मतलब वो फिट नहीं बन सकते. आई थिंक इट्स अ मिथ, और इसका बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास. आर्नोल्ड जो एक अपनी फिटनेस के लिए, बॉडी बिल्डिंग के लिए जाने जाते हैं, ही इज़ वेजिटेरियन. मिलिंद सोमन जो हमारे इंडियन एक्टर और एथलीट है, सो ही इज़ अ वेजिटेरियन. इनफैक्ट विराट कोहली, ही इज़ अ वेजिटेरियन. मतलब ही इज़ द मोस्ट फिट क्रिकेटर नॉट जस्ट इन इंडिया, थ्रू आउट द वर्ल्ड. ही इज़ अ वेजिटेरियन. देन वीनस विलियम्स जो टेनिस प्लेयर हैं, उन्होंने भी वीगन डाइट को फॉलो करना शुरू किया है. सो दैट मीन्स ऑल दीज पीपल आर लिविंग एग्जाम्पल्स फॉर अस के वेजिटेरियन होने के बाद भी यू कैन बिल्ड बॉडी, यू कैन बिल्ड मसल्स, यू कैन बी एन एथलीट, यू कैन बी एन एक्टर, यू कैन हैव अ फिट एंड फाइन बॉडी. सो अब लेना क्या है, दो चीज़ें. एक तो है कि अगर आपका गोल क्या है, उस पर डिपेंड करता है. अगर आपका गोल है कि सिर्फ एक नॉर्मल फिटनेस मेंटेन करनी है, एक नॉर्मल घर बैठे इंसान को 0.8 ग्राम to 1 ग्राम पर kg ऑफ देयर बॉडी वेट
प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है. Okay. दैट्स द बेयर मिनिमम प्रोटीन एवरीबडी मस्ट हैव. Right. वो हम अपने खाने से ले सकते हैं अगर हम कॉन्शियस ईटिंग करते हैं तो. Okay. अगर हम ध्यान देते हैं कि हमारे हर मील में कम से कम 30% प्रोटीन है, प्रोटीन का सोर्स है, बीट इन द फॉर्म ऑफ पनीर, दालें, छोले, चने, राजमा, इन सब चीज़ों के फॉर्म में, या फिर मिल्क, इन सब चीज़ों की फॉर्म में है, तो आप कहीं ना कहीं उसको मीट कर लोगे. बट आपको बहुत कॉन्शियस रहना पड़ेगा. ये मैं बहुत फेयर बात कर रही हूँ. बट अगर आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट इससे थोड़ी ज़्यादा है, अगर आप वर्कआउट करते हो, एक्सेसिव वर्कआउट करते हो, आपकी फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा है, या फिर आपका कुछ गोल है, आपने वेट लूज करना है, मसल बिल्डिंग करनी है, तो आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट और भी ज़्यादा बढ़ जाती है. Okay. अब यहाँ पे फिर हम थोड़ा सप्लीमेंट्स का सपोर्ट ले सकते हैं, प्रोटीन पाउडर का ले सकते हैं. ऑफ कोर्स ये चेक करते हुए कि वो सही प्रोटीन सप्लीमेंट है, उसमें कुछ मिलावट नहीं है. अगेन Okay. डब्बे के पीछे विल टेल यू एवरीथिंग अबाउट इट. Okay. और सप्लीमेंट्स को लोग बहुत बुरा समझते हैं, वो एक टैबू मानते हैं कि नहीं नहीं प्रोटीन सप्लीमेंट्स तो खराब होते हैं. बट नॉट ऑल प्रोटीन सप्लीमेंट्स आर बैड. यू डू योर ओन रिसर्च, यू डू योर ओन होमवर्क एंड सी कौन सा सही है आपके लिए. ये ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर हम सिर्फ फूड से अपनी हायर लेवल ऑफ प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स को मीट करने की कोशिश करेंगे तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. Okay. जैसे अगर हम एक बोल दाल खाते हैं तो उसमें हमें 5 से 10 ग्राम प्रोटीन मिलता है, एक बॉइल्ड एग में हमें 6 ग्राम प्रोटीन मिलता है, और ये एक स्कूप प्रोटीन पाउडर से हमें 25 ग्राम प्रोटीन मिलता है. तो बहुत डिफरेंस है. तो अगर किसी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो वो सप्लीमेंट्स या प्रोटीन पाउडर्स को सोच समझ के अपनी डाइट में इंक्लूड करें. एंड दिस इज हाउ. और प्रोटीन पाउडर में भी अब हमारे पास वीगन प्रोटीन पाउडर, प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर, हर तरह के हैं. वे तो चलो है ही. सो वी हैव ऑल द वैरायटी. चूज व्हाट इज राइट फॉर योरसेल्फ एंड यू कैन डू दैट. Any thumbnail for choosing the right protein? सो प्रोटीन भी बहुत अलग अलग तरह के आते हैं. वो डिपेंड करता है Okay. आपका गोल क्या है. So For a person like me, for example, like again, we what regularly is your work, goal? It depends on your goal. good energy levels throughout the day. So अगर आपको एनर्जी लेवल्स चाहिए अच्छे, और अगर आप वेजिटेरियन हैं, नॉन वेजिटेरियन, Vegetarian. सो इफ यू आर अ वेजिटेरियन एंड यू जस्ट वांट टू मेंटेन योर एनर्जी लेवल, तो वंस अ डे आप कोई भी एक प्लांट बेस्ड प्रोटीन, बहुत सारे प्लांट बेस्ड प्रोटीन आते हैं. मैं Okay. किसी ब्रांड का नाम नहीं लूँगी, बट ईजिली आप नेट पे भी रिसर्च करोगे आपको मिल जाएंगे. तो कोई भी प्लांट बेस्ड प्रोटीन आप लीजिए, और उसका एक स्कूप नॉर्मल पानी में मिला के आप अपने साथ ब्रेकफास्ट या इवनिंग whenever you want to have it, you Okay. can have it. And that's absolutely fine. There is no harm in that. Okay. Workout or diet? Which is more important in maintaining a good body? So वैसे अगर आप बुक्स में देखोगे या इंटरनेट पे देखोगे तो ये बहुत कॉमनली कहा जाता है 70% डाइट एंड 30% वर्कआउट. बट मुझे ये लॉजिक मुझे लगता है डाइट का अपना अलग रोल है और वर्कआउट का अलग रोल है. Okay. कुछ परसेंटेज नहीं है. सो डाइट भी 100%, वर्कआउट भी 100% और माइंडसेट भी 100%. Oh, अगर हमारा okay. माइंडसेट ही सही नहीं होगा तो हम कुछ ना डाइट करेंगे ना वर्कआउट करेंगे. डाइट इज मोस्ट इसेंशियल फॉर, मतलब इट्स न्यूट्रिशन. आप अपनी बॉडी को क्या फ्यूल दे रहे हो, तो ये तो इट टेल्स एवरीथिंग अबाउट दैट. और राइट न्यूट्रिशन की, राइट डाइट की ज़रूरत हर किसी को है, भले उनका कुछ भी गोल हो. वर्कआउट आपकी बॉडी में स्टैमिना, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी, इन सब चीज़ों को बढ़ाने के लिए, तो उसका अपना अलग रोल है. आप सिर्फ डाइट ही अच्छी ले रहे हो और आपकी फिजिकल एक्टिविटी ज़ीरो है तो यू विल नॉट बी एबल टू, आप अपने काम ठीक से नहीं कर पाओगे. वर्कआउट का अपना एक बहुत सॉलिड रोल होता है आपको अच्छी नींद देने में, आपकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बना के रखने में, आप अपने सारे काम खुद से कर पाओ, चलते फिरते रहो, सीढ़ियाँ उतर चढ़ पाओ. इन सब चीज़ों में बहुत सॉलिड रोल है वर्कआउट का भी. सो बोथ आर इम्पॉर्टेंट. And workout में home workout or gym? What do you recommend? दोनों अपनी अपनी जगह ठीक है. अगेन डिपेंड्स कि गोल क्या है. अगर Okay. किसी का गोल है सिर्फ फिटनेस मेंटेन करना, देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो हम होम वर्कआउट के थ्रू कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हमें कार्डियो एक्सरसाइजेस करनी है तो हम वो ईजिली घर पे कर सकते हैं. रनिंग, जॉगिंग कर सकते हैं हम. बहुत सारी HIIT एक्सरसाइजेस हम कर सकते हैं विच आर गुड फॉर द कार्डियो हेल्थ. अगर हमें फ्लेक्सिबिलिटी के लिए करना है, योगा करना है, ये सब हम घर पे आसानी से कर सकते हैं. हाउएवर अगर हमारा गोल है बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ को बिल्ड करना, जिसके लिए मे बी वो भी बॉडी वेट से किया जा सकता है. बॉडी वेट एक्सरसाइजेस हम आसानी से घर पे कर सकते हैं और सफिशेंट होती हैं टू अ लेवल. बट उसके बाद अगर किसी का गोल है कि हाँ उसको अच्छे मसल्स चाहिए, तो उसके लिए शायद जिम में, क्योंकि जिम में आपको वो सारे इक्विपमेंट्स मिलते हैं, वो एक ऐसा एनवायरनमेंट मिलता है, वो सारे वेट्स, आप वेट बढ़ा सकते हो, वो सारी ऑप्शंस जिम में रहती हैं. तो अगर किसी का गोल स्ट्रेंथ बिल्डिंग है, बॉडी बिल्डिंग है, मसल बिल्डिंग है, तो जिम उनके लिए ज़रूरी है. बाकी सभी चीज़ों को घर पे किया जा सकता है अगर करना आता हो तो. Okay, there are a lot of people
जो अपने काम में अच्छी एनर्जी, मोबिलिटी, एक्टिविटी फील करना चाहते हैं, राइट, सो दे डोंट जस्टली वांट कि जिम वाली बॉडी हो, डोले शोले हो, ऐसा नहीं चाहते वो, बट लेकिन यू नो वी शुड बी एट द पीक ऑफ एनर्जी. सो एनी एडवाइस यू कैन गिव फॉर सच पीपल इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, कि हम पूरा दिन जब काम करें ना और शाम को घर लौटें तो थके हुए, थके हारे, परेशान से नहीं होने चाहिए. लाइक एनर्जी सुबह जैसी नाव चलेगा, लेकिन we should be at some good level of energy. So what do you advise us, or what is the hack to get that whole day energy? I think there is no hack. It's pretty simple. हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं और हम हमेशा से इस चीज़ को मानते हैं, you are what you eat. Okay. तो जैसा हम खाएंगे हमारी बॉडी एग्जैक्टली वैसे ही रिएक्ट करेगी. अगर हम हैवी खाना खा रहे हैं, तला हुआ खाना खा रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमें आलस आएगा, हमारी एनर्जी लेवल्स एकदम से ड्रॉप करेंगे, क्योंकि बॉडी तो बिजी हो गई उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए. और यही अगर हम लाइट मील्स ले रहे हैं, मिनी मील्स ले रहे हैं पूरे दिन में, और वही हैवी कार्ब्स नहीं ले रहे, बैलेंस्ड मील्स ले रहे हैं, फ्रेश सब्जियां खा रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, मैं इसको बोलती हूँ रेनबो डाइट ले रहे हैं. अगर हम रेनबो डाइट एज एन ऑल कलर्स, अगर आपके कलरफुल खाना है, दैट मीन्स आपको हर तरह के विटामिन्स, मिनरल्स मिल रहे हैं. Okay. सो जैसे कई लोग पूछते हैं ना, कैसे पता चलेगा कि मेरा खाना बैलेंस्ड है या सारे विटामिन्स हैं? कैन यू ऐड एज मेनी कलर्स एज यू कैन इन योर डाइट, यू विल गेट ऑल द डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स एंड फाइटोकेमिकल्स, एवरीथिंग. तो इस तरह की अगर हम डाइट ले रहे हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी जो एनर्जी है वो ऑन पॉइंट रहेगी, हम शाम तक भी थकेंगे नहीं. ये हो गया डाइट. दूसरा है हाइड्रेशन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो कई बार हमारी बॉडी डिहाइड्रेटेड ही होती है, जिसकी वजह से हम थका हुआ महसूस करते हैं, या हमारे को सिर में दर्द हो रहा होता है, हमें पता नहीं होता, क्योंकि हमारी बॉडी इज़ नॉट वेल हाइड्रेटेड. सो पानी रेगुलरली पीते रहना इज़ द सेकेंड थिंग. एंड थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ स्लीप. हम स्लीप को बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं, स्पेशली वो लोग जिनके बहुत बड़े गोल्स हैं, जिनको लाइफ में कुछ अचीव करना है ना, उनको लगता है कि सोएगा तो खोएगा, मुझे नींद कम करके काम करना चाहिए, आई शुड बी अप एंड एट वर्क. बट नहीं, दैट्स नॉट राइट. बॉडी को स्लीप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि उसी वक्त हमारे ब्रेन सेल्स रिपेयर मोड में जा रहे हैं. हमारा फोकस, कॉन्सेंट्रेशन उतना ही बढ़ेगा जितना हम अच्छी डीप स्लीप लेंगे. तो 7 से 8 घंटे की नींद आपके बाकी के जितना भी टाइम है, टाइम ऑफ योर डे, उसको मैक्सिमाइज आप कर पाओगे, ज़्यादा फोकस्ड रह पाओगे अगर आप नींद अच्छी ले रहे हो. तो सो ऑल दीज 3 थिंग्स. एंड अलॉन्ग विद दैट, अगर आप एक्सरसाइज कर सको, एटलीस्ट 30 मिनट्स की अगर आप एक्सरसाइज कर सको, तो उसका आप डायरेक्ट इम्पैक्ट देखोगे अपने एनर्जी लेवल्स पे और अपने फोकस पे. सो इफ यू वांट टू हैव गुड एनर्जी थ्रू आउट द डे एंड एट द एंड ऑफ द डे, तो अच्छा खाना, लाइक हल्का खाना, खास तौर पे आपने बोला, लाइक मिनी मील्स, राइट, एंड लेस ऑफ जंक एंड प्रोसेस्ड एंड हैवी वाला. और सेकंड इज हाइड्रेशन, यू सेड, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड थर्ड इज स्लीप. बोनस इज वर्कआउट. And you will see a drastic change if you'll do regular workout. Okay. और अगर जिम जाने का टाइम नहीं है, तब भी अगर आप सुबह 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट्स रन के लिए, जॉग के लिए जा सकते हो. इस तरह की कोई भी एक्टिविटी कर लो. आपको गेम्स खेलना पसंद है तो कोई गेम ज्वाइन कर लो, स्विमिंग ज्वाइन कर सकते हो, कुछ भी इस तरह की चीज़ जिसको आप इंजॉय करो, ताकि आप उसको लंबे समय तक के लिए कर सको. Fantastic. But that will help a lot. Right. Okay, we have 2 kinds of people now. One is जिनको वेट कम करना है, सेकंड है जिनको वेट थोड़ा गेन करना है. सो आपकी तरफ से एक क्विक चैलेंज जैसा कुछ अगर आप उन्हें बोलना चाहें कि ये करोगे तो वेट कम हो सकता है, 1 or 2 थिंग्स. आई थिंक जो मेजर एक डिफरेंस है, जिनको वेट लूज करना है उनको भूख से कम खाना है, मतलब कैलोरी डेफिसिट में रहना है, तभी उनकी बॉडी से एक्स्ट्रा फैट बर्न होगा और वो वेट लूज करेंगे. और जिनको वेट गेन करना है उनको कैलोरी सरप्लस में खाना है, राइट, तभी वो वेट गेन कर पाएंगे. बट स्टोरी यहाँ पे खत्म नहीं होती, यहाँ से स्टार्ट होती है. क्योंकि ज़्यादा खाने वालों को लगता है कि हम कुछ भी खा लें, हम तो जंक खाएं क्योंकि हमें ज़्यादा खाना है. और ये एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है. यू कैन नॉट ईट एनीथिंग जस्ट टू गेन वेट, बिकॉज वेट नहीं गेन होगा, वो बेली फैट गेन होगा और कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा. वो अनहेल्दी तरीके से आपका वेट तो गेन हो जाएगा, बट आई एम श्योर यू विल नॉट लाइक इट. You will not like the structure that you will get. So you need to still eat right. You need to still eat nutritious food, high protein food, balanced meals, even in order to gain weight, while having some additional calories. मतलब calorie surplus में रहना है, but nutritious food के through. Nutrient dense food हम इनको बोलते हैं. मतलब इस तरह के खाने जो nutrition से भरे हुए हैं, जैसे कि dry fruits की हम बात कर रहे हैं. इतने से dry fruits से आपको बहुत ज़्यादा calories मिलती हैं. एक बनाना से आपको अच्छे अमाउंट में calories मिलती हैं और अच्छे आपको मैग्नीशियम और विटामिन्स मिलते हैं.
वेट लूज करने वालों के लिए आपको अपनी भूख से थोड़ा कम खाना है, थोड़ा सा अपने कैलोरीज को डेफिसिट करना है, ये दोनों चीज़ें हो गई अलग। बाकी सारी चीज़ें सेम है। एक्सरसाइज करना, चाहे आप वेट लूज करना चाहते हो या गेन करना चाहते हो, इज़ एसेंशियल। नींद पूरी लेना, इन ईदर केसेस इट इज़ एसेंशियल। स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों चीज़ों के लिए, क्योंकि अगर आप अच्छा खा भी रहे हो, सो भी रहे हो, अगर आपकी स्ट्रेस में रहते हो तो सारे हॉर्मोन्स का you will not be able to manage it. Body will not function properly if you are under stress. But nowadays people say stress is part of life. Like stress तो आएगा ही. It's a modern life. Right. So if we ask गुंजन की एक कोई चीज़ बोल दो आप जिससे हम एक कोई थॉट हो या कोई एक हैक हो जो आपको लगता हो या आप यूज करती हो, आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें आप करती हैं. यू हैव अ रेंज ऑफ हेल्थ प्रोडक्ट्स, देन यू हैव अ टीम ऑफ डाइटिशियंस एंड हेल्थ कोचेस हु आर वर्किंग विद सो मेनी क्लाइंट्स, यू ट्रैवल. So how do you manage stress yourself, if you want to share that? That's true. Stress is a part of life. But do you know there are two types of stresses? One is EU stress. We call it EU stress and it's a happy stress. It's a good stress. मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ. लेट्स से आपकी एक एक्साइटिंग सी कोई वीडियो शूट है रणवीर सिंह के साथ. Okay. Yes. You will be a little nervous. थोड़ा स्ट्रेस भी होगा कि कल मुझे रणवीर सिंह के साथ शूट करनी है. Right? ये एक पॉजिटिव स्ट्रेस है. आप उससे घबराए नहीं हुए. ये एक नेगेटिव चीज़ नहीं है, एक पॉजिटिव चीज़ है. बट स्टिल इट इज़ अ स्ट्रेस. इट्स अ फॉर्म ऑफ स्ट्रेस विच इज़ अ पॉजिटिव स्ट्रेस. सो ये वाला स्ट्रेस तो इट्स गुड. ये तो होना चाहिए लाइफ में. एक्साइटिंग चीज़ें होनी चाहिए, एक्साइटमेंट होनी चाहिए, और ये EU स्ट्रेस होना चाहिए. What is EU? It's just the like how it is called. EU stress. It's how it is called. And then there is another stress जो कि है problematic stress, negative stress, anxieties जिसको हम कह सकते हैं. वो हमारे काम की वजह से, प्रेशर की वजह से, वर्कलोड की वजह से होता है. और आयरनी ये है दीपक कि जितने लोगों को ज़्यादा स्ट्रेस होता है उन्हीं को ही माइंडफुल प्रैक्टिसेस यानी कि मेडिटेशन और इन सब चीज़ों की नीड होती है, बट उन्हीं के पास टाइम नहीं होता. Those who need it the most are not able to do it because they are busy all the time. So उन्हें इस चीज़ की इम्पोर्टेंस को समझना और दिन में कम से कम 5 मिनट निकालना, एटलीस्ट वी कैन स्टार्ट फ्रॉम देयर. 5 मिनट निकालने से, बिकॉज विल सी कि वो 5 मिनट का जो इफेक्ट है हमारे बाकी के पूरे दिन पे या हमारी मेंटल हेल्थ पे, वो इतना ज़्यादा है कि वो हमारे स्ट्रेस को लोअर कर रहा है और हमारे काम की एफिशिएंसी को बढ़ा रहा है. Right. So that's how we can handle it, by realizing the importance. We know we all are busy, but शायद हमारे काम की हमारी एफिशिएंसी को बढ़ाएंगी ये सब चीज़ें अगर हम माइंडफुल प्रैक्टिसेस करते हैं तो. और मेडिटेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है. लोगों को ये नाम बहुत ऐसा लगता है, क्लीशेड लगता है कि क्या मेडिटेशन, आंखें बंद करके बैठ जाओ, मेरे से तो होती नहीं है. डोंट थिंक ऑफ इट एज कि मुझे ऐसे आंखें बंद करके बैठना और कुछ नहीं सोचना. मुझे लगता है कि मेडिटेशन हर चीज़ में, अगर आपको जो चीज़ करनी पसंद है, इवन इफ यू एंजॉय डूइंग समथिंग, यू एंजॉय मे बी पेंटिंग और वॉट एवर, वो भी आपके लिए मेडिटेशन है. तो दिन में कुछ टाइम निकालो उस हॉबी के लिए एंड डू इट सो माइंडफुली दैट यू आर लॉस्ट, यू आर डिस्कनेक्टेड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड जस्ट इनटू इट. दैट बिकम्स योर मेडिटेशन. मेडिटेशन यही तो है कि सब जगह से ध्यान हटाकर एक जगह पर ध्यान लगाना. And it can be anything. Right. This is very important point, right? If our relationship to our work, अगर ये बदल जाए ना, then day becomes meditative day. Exactly. Right. Exactly. So our latest book that I have written, उसमें I have given a difference between doing and engaging. Okay. Doing is something जब आप एक ईमेल लिख तो रहे हो लेकिन आपके माइंड में 3 और तरह की चीज़ें चल रही हैं और आप बोल रहे हो 1 मिनट आ रहा हूँ, मेल भी लिख रहे हो, साइड में कुछ और विंडो भी ओपन है और फिर व्हाट्सएप पे भी कुछ चल रहा है. एंगेजिंग इज समथिंग व्हेन यू आर fully into it. और जो आपकी बात से मुझे लग रहा है कि when you are engaged in something, that itself is kind of meditation. Your work becomes वो कहते हैं ना being present in the moment. जो भी आप कर रहे हो उसमें fully अगर आप mentally present हो तो वो ही आपके लिए मेडिटेशन है. Fantastic. Most of the times ऐसा होता है कि हम एक जगह पे एक रूम में जाते हैं, काम करके आ जाते हैं, अगर हम वापस आके उस इंसान से पूछे कि उस रूम में किस कलर का काउच था तो उसको पता ही नहीं होगा. It's because we are not fully present. Right. अगर हम fully present हो तो हमें हर एक एलिमेंट दिखाई देगा, हर एक चीज़ दिखाई देगी. Awesome, Gunjan. So all our questions are answered. We have very quick rapid fire questions. Okay. Right, so maybe one-liners or one word for you. Sure. Right, ready? Yeah. All right. Okay, आपका favorite healthy meal? I'm a foodie, so I love to eat so many things, but oatmeal. Oatmeal. Oats. Because वो बहुत easy है, बहुत convenient है मेरे लिए और healthy भी है. Okay.
And इसकी opposite, what is your guilty pleasure in terms of food? चॉकलेट केक. Chocolate cake, you already told. Okay. आपकी fitness का सबसे बड़ा challenge जो आपने कभी भी लिया हो in terms of your fitness? आई थिंक वर्कआउट एक ऐसी चीज़ है जो मैं पहले बहुत आई यूज टू हेट. मुझे समझ नहीं आता था कि क्या वर्कआउट, इट्स सो बोरिंग, जिम में जाके डंबल्स उठाना यूजलेस, क्या है ये. बट नाउ आई लव इट. Okay. मतलब मैं अब बिना, अगर मैं दिन में वर्कआउट नहीं करूँ तो मेरा दिन कंप्लीट नहीं होता. Oh. तो आई नाउ लव माई वर्कआउट टाइम द मोस्ट. Okay, when you talk about workout, so who is your fitness inspiration? There are so many. I mean, Virat Kohli is one Okay. of them definitely, because the kind of lifestyle that he has, and along with that वो जिस तरह से अपने workout को follow करते हैं. So I think I really look up to him a lot. Your go-to stress reliever? कोई ऐसी चीज जो आप करती हैं जब आप स्ट्रेस में होती हैं? मैं कैमोमाइल टी पीती हूँ जब मुझे थोड़ा सा रिलैक्स्ड फील करना होता है. आई थिंक ऑल दीज हर्बल टीज रियली हेल्प. इट आपका स्ट्रेस को दूर करती हैं और रिलैक्सेस यू डाउन, सूद्स योर मसल्स. आपकी वाली चाय भी? हाँ. I am wow चाय. इसमें तो 7 अलग अलग इस तरह के फ्लावर्स हैं, तो इट डेफिनेटली. I have personally used it. That is phenomenal. Thank I you can say that. It's one of the best chais I had. Really? Anything you definitely do for a good sleep? I think I tire myself up throughout the day so much that I get a good sleep anyway. Okay. मतलब वो दिन में इतना ज़्यादा अपने आप को इतना काम, मेंटली, फिजिकली इतना कुछ कर लो, एक्सरसाइज कर लो, अपने आप बॉडी को इतना थका दो कि बेड पे जाके तुम क्रैश कर तुरंत क्रैश कर जाओ. एकदम. Okay. Any health discovery which you are surprised about? कुछ आपको खास एक health के बारे में कुछ You discovery? can actually eat your favorite food and can still be fit at the same time. अरे वाह, fantastic. Any wellness goal you have for yourself for future? It's always there. I think for me it's a journey. और मुझे लगता है कि वो हमारे माइंड में हमेशा रहता ही है कि, और वो होना भी चाहिए. आई वॉन्ट टू बी इवन बेटर देन वट आई एम टूडे. सो राइट नाउ आई एम हैविंग दिस स्ट्रेंथ बेस्ड गोल. आई रियली वॉन्ट टू वर्क ऑन माई स्ट्रेंथ. अब मैं आई थिंक उस जोन से बाहर निकल चुकी हूँ कि मुझे आई हैव टू लुक अ सर्टन वे. आई नाउ वॉन्ट टू फील अ सर्टन वे. आई वॉन्ट टू फील हेल्दियर, स्ट्रॉन्गर एंड मेंटली एंड फिजिकली बोथ. Fantastic. मुझे फर्क नहीं पड़ता मैं दिख कैसी रही हूँ, मुझे बहुत फर्क पड़ता है मैं फील कैसा कर रही हूँ. Right. This is like next level, I guess, right? So Yeah. first you start Yes, I'm looking out good, of- and then out of- after that you reach that level. Fantastic. Best health advice you ever received? बहुत टाइम से तो मैं दे रही हूँ एडवाइसेस. आई एम एक्चुअली थिंकिंग. आई थिंक मैं खुद इस चीज़ को एंडोर्स करती हूँ, एंड माई सेल्फ बीइंग अ वेजिटेरियन. और अभी क्योंकि ये वीगनिज्म इतना ज़्यादा चल रहा है, तो मैं जिन भी लोगों से मिलती हूँ जो वीगन होते हैं, वेजिटेरियन होते हैं, मैं उनके साथ बहुत ज़्यादा रेजोनेट करती हूँ. बिकॉज आई पर्सनली बिलीव दैट आई हैव नो प्रॉब्लम्स विद दोज हु ईट नॉन वेज. no hard feelings for them. I absolutely love everybody, no matter उनके फूड चॉइसेस क्या है. बट Right. मुझे ऐसा लगता है कि जो वेजिटेरियन खाना है वो बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन वाला खाना है. Nice. So it gives you very good positive vibrations, and it also keeps you fit and healthy. So I think it's always good to hear from other people, especially who pursue fitness. और जब उनकी मैं स्टोरीज पढ़ती हूँ और देखती हूँ कि कैसे वीगनिज्म या वेजिटेरियन को फॉलो करके भी वो Right. कुछ अचीव कर पा रहे हैं, तो एक डबल स्टैम्प लग जाती है उस चीज़ के ऊपर. And last one, any fitness myth people had and you busted that? There are a lot of myths which keeps floating around. I think सबसे बड़ा myth तो यही है कि the food which is labeled as healthy is not really healthy. I think we still need to fight with this, and awareness is something which can help us understand what is really right for us. Because जैसे हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि ब्रांड्स अपने प्रॉफिट के चक्कर में लोगों की हेल्थ के साथ खेल रहे हैं, एंड दिस इज समथिंग विच रियली हर्ट्स मी. बच्चों के ऐसे फूड प्रोडक्ट्स होते हैं जो उनकी हेल्थ को बहुत ख़राब करते हैं, बट हेल्थी का लेबल देकर हम उसको उस गिमिक में, उस टैक्टिक में फंस जाते हैं. आई थिंक दैट्स रियली सैड. Okay, and based on so many people you have already met and so many people you have already helped in terms of their transformation in health, fitness, one thing that you want to tell our audience? I think again the 3-4 key things I would say. In fact, मैं अगर हम सबसे बात करें तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मोस्ट ऑफ द पीपल जो हमें शायद सुन रहे हैं उनके भी यही चैलेंजेस होंगे कि टाइम नहीं होता. आई डोंट वांट कि वो इस पॉडकास्ट को, इस डिस्कशन को सुनने के बाद आई रियली वॉन्ट कि वो क्या है जो आज से ही इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी लाइफ में. तो समथिंग दैट दे कैन इमीडिएटली इम्प्लीमेंट इज
कि अगर आपके पास किसी चीज़ के लिए टाइम नहीं है, एनर्जी नहीं है, पैसा नहीं है, तो आप बेसिक एक ये चीज़ करो कि आप अपनी बायो क्लॉक को, यानी कि अपने सर्कैडियन रिदम को फॉलो करना शुरू कर दो। इसके लिए आपको कोई कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, मतलब कि आप अपने स्लीप साइकिल को मॉनिटर करो, एज इन स्लीप रूटीन। अगर आप 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे बेड पे जाते हो सोने के लिए, तो उतने बजे जाओ और 7 से 8 घंटे की नींद लेकर आप सेम टाइम रखो। मील टाइमिंग्स को फिक्स कर लो। Okay. हम लोग कभी 2 बजे लंच कर रहे हैं, कभी 4 बजे लंच कर रहे हैं, कभी लंच स्किप कर रहे हैं, सो डोंट डू दैट। करना ही है उसको टाइम पे करो। और इस तरह की चीज़ें, सर्कैडियन रिदम की अगर मैं बात कर रही हूँ तो सन एक्सपोजर हो गया, थोड़ी देर मॉर्निंग सनलाइट को अपने ऊपर पड़ने दो, बिकॉज दैट रियली हेल्प्स बैलेंसेस योर हॉर्मोन्स। अभी हम एनर्जी की बात कर रहे थे, बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है उसका आपके मेंटल हेल्थ के ऊपर, आपकी स्किन के ऊपर, हेयर के ऊपर। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जिसे हम कर सकते हैं, एंड इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल नहीं करना हमें। कॉस्ट इफेक्टिव भी है। Cost effective. Fantastic. Thank you so much, Gunjan, for giving your precious and valuable time to Most us. welcome. Your interaction was mind blowing. So ये थी हमारे साथ गुंजन तनेजा. She has been a living example of the transformation she has achieved for herself, and she has a very big, huge, phenomenal community of 2 million plus people on social media. और इन सबको और दुनिया भर के लोगों को she has been transforming their lives through health, good food, wellness, diets, workouts, in all these areas. Right, so thank you so much for Thank you. being I so really generous loved with the all your conversation. advice to all our audience, and I'm sure ये सारी बातें, इसका अगर थोड़ा भी किसी ने implement कर लिया ना, so they will have phenomenal transformation. और इन सब की stories हम आपको pass on कर देंगे. Oh wow, that will be best. Thank you so much for Thank joining you, us. thank Thank you you. so much.